So this is the session today we will discuss about. This session, the name of the session is the tug of war. It's coming or you can just send me, I'll read. Yeah, go below. Yes. So from here the story begins. Yes, okay. So there is the story of what's the story about Karna. Some of you can read it. Pandavas were the five virtuous sons of Pandu: Yudhishthira, Arjun, Bhima, Nakul, and Sahadev. The sons of Dhritarashtra, the 100 Kauravas, were headed by Duryodhana, who was always inimical to Pandavas. He devised various ways and means to somehow kill the Pandavas, but he could never succeed. Yes, next person. At one time, Drona, the material teacher of Pandavas and Kaurava princes, arranged for a exhibition after they completed their education in martial arts. All the princes entered the arena, beginning with Yudhishthira. The princes stepped forward one by one. They mounted swift horses And rode them. rode them expertly, wheeling about the arena and hitting both still and moving target with arrows engraved with their respective names. Bhim and Duryodhan stepped forward to display mace fighting. They dueled like furious bulls. After some time, Drona called from Arjuna. A cry of joy went up from the audience. Arjuna is Next. Arjuna displayed one celestial weapon after another. With the Agneya weapon, he produced fire. With the Varuna weapon, he produced volumes of water. With the Vayavya weapon, he caused a great wind to blow. And with the Arjuna weapon, he created a huge downpour of rain. Arjuna created land with the Bhuma weapon, and with the Parvat weapon, he made a hill appeared in the arena. Then by invoking the Antardhan weapon, he made all those things disappear. He shot 20 arrows into the hollow of a cow's horn swinging on a rope around a pole. Then Arjun demonstrated his ability in sword and mace fighting. Next. The exhibition was almost over. Suddenly they heard at the stadium gate the sound of someone slapping his arms and roaring like an enraged elephant. It was Karna who proclaimed, "I shall show skills equal to those of Arjuna." As Drona nodded his head at once, he began to show his skills. He matched every feat Arjuna had displayed, and the crowd
shouted their approval. When he had finished, Duryodhan went over and warmly embraced him. Duryodhan thought to himself, here is someone who could stand against that haughty Arjuna. Duryodhana laughingly said to Karna, you are welcome, O mighty hero. By good fortune you have come here today. Tell me, what can I do for your pleasure? I and Kuru kingdom are at your command. Actually, Duryodhan want to befriend anybody who can help him to somehow or other defeat the Pandavas. And here was a courageous warrior who was equal in talents to Arjuna, and Duryodhan quickly wanted to drag him to his side. Seeing Arjun, You can read Akash Purna. Seeing Arjuna as his competitor, Karna wanted to engage in a single combat with Arjuna. Just as the two warriors were about to duel, Kripa, who knew all rules of combat, stepped forward and asked, this Anak Pandu is the child of Kunti and a descendant of royal Kuru race. Let us hear from his opponent what is his lineage. Once he knows this, Partha may decide whether or not to fight. Kripa looked at Karna. Duels were fought only among equals. This Kripa is Kripacharya. Yes. Karna said nothing. It was clear that he was not from a royal line. Karna was raised and brought up by a charioteer, Adhirath. Karna was not aware of his original parents. Seeing his situation, Duryodhana spoke out. Those who are heroes and leaders of soldiers may also claim nobility, even if not born in royal lines. But if Arjuna will duel only with another king, then I shall immediately give Karna a kingdom. Duryodhana made him the king of Angladesh. Deeply moved by Duryodhana's gesture of friendship, Karna said in a choked voice, what can I ever do to repay you, O king? I shall always be at your command. Duryodhana replied in his own cunning way, your friendship alone is all that I desire. Duryodhana wanted to make friendship with Karna so that he may help him in destroying the Pandavas. This was the personal hidden motive of Duryodhana. Although Karna was raised by ordinary charioteer Adhirath, he was not his son. Do you know who was Karna? Karna was also a son of Kunti, offered by sun god in her virginity through a mantra. When this child was offered by sun god, Kunti did not know what to do with this child. She was a virgin. How can an unmarried girl maintain a child? Thinking in this way, Kunti had kept the child in a basket and put it in river. This child was taken up and raised by a charioteer, and now he showed up in the arena. Thus, Karna was also the brother of Pandavas, but he was not aware at that time. When Karna got to see the evil schemes of Duryodhana, he did not like them. Still, he has to be a part of it due to evil company. Blinded by material friendship with Duryodhana, Karna sided the Kauravas even in the battlefield of Kurukshetra. Karna knew very well that the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, is siding the Pandavas. At one time before the war, Kunti personally met Karna and revealed his true identity. He came to know that he is son of Kunti and the 5 Pandavas were his brothers. He wept torrents of tears to know that he is the eldest brother of all the Pandavas. Even Krishna took him in his chariot and gave him good advice. Karna shook his head and said, undoubtedly your words are meant for my good. O Keshav, I now know that I am Pandu's son. For 13 years I have enjoyed sovereignty only due to Duryodhana's favor. I owe him a lot. Depending on me, he has formed an enmity with all the Pandavas. If I back now, I will become infamous and prove myself disloyal to Duryodhana. I know the Pandavas are pious men who deserve to rule the earth. The harsh word I spoke to them and their wife previously were only for Duryodhana's pleasure. Remembering them now, I am filled with sorrow. Karna headed sorrowfully back towards Hastinapur. Soon he would have to wage war against his own brothers.
and against Krishna, who was clearly his well-wisher, even if his advice was hard to follow. Despite knowing that Duryodhana is wrong in his ways, Karna supported him merely out of material friendship. This is out of cowardly sentimentalism. He thought, I have eaten food from his hands. He saved my prestige, so I should not give him up. Karna never understood that even the food provided by Duryodhana comes from Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Ultimately, because of such evil company, Karna was destroyed. This teaches us a good lesson, that we should give up the company of evil-minded people like Duryodhana or Shakuni, who may apparently speak sweet words but have a heart filled with poison. If Karna had joined the side of Pandavas by accepting the instruction of Krishna, he would have got the greatest credit of following the order of the Supreme Lord. At the same time, he would have ruled the entire world assisted by his 5 Pandavas brothers. Due to blind attachment to a so-called friend, Duryodhana, whose heart is filled with complicated network of evil intentions towards virtuous devotees like Pandavas, Karna lost all his prosperity. We should always take the side of Supreme Lord Krishna. Okay? So this is a story, famous story of Mahabharata. So these are the, So in this story, the name of this session is Tug of War. Who is facing the tug of war? Karna. You know the tug of war, you have seen the tug of war game? From 2 sides people are pulling. You have participated in it? Yes, sir. Generally those who are strong and healthy are chosen in college to participate in tug of war, or like in army and other places, sports you see. So it's very tight, and generally tug of war game, it's not like in one go generally person, it's like goes here, goes there, it's like that. You see tug of war game that way, and they pull each other. Sometimes the person is pulled this side, sometimes the person is pulled that side, that the way. So the story of Karna is a very emotional story. There are many books written about Karna. Karna is famous as Danveer Karna, the serials made on it. So in Mahabharata, Karna is a character who has a lot of skills and he is very powerful. But somehow he was thoughtful also, but he took a decision. So the whole story is about the decision making. So Karna, when he was brought, so what happened? Karna has a strong feeling, he has a strong need for belonging. We all need a sense of belonging. आपने देखा जैसे स्कूल में लंच होता है तो सब फ्रेंड्स वगैरह एक साथ बैठते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं सब अपने अपने सर्कल में बैठते हैं. Is it not? अभी सपोज आप किसी और कॉलेज में गए, आप वहाँ किसी को नहीं जानते हो, किसी कंपटीशन के लिए गए तो लंच होगा, तो आपको बहुत लोनलीनेस लगने लगेगा, करेक्ट? बिकॉज यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, यू आर अलोन, और यू गो टू सम इवेंट. People have a sense of belonging. If you go somewhere, nobody knows you, then how we feel? We feel uneasy. Like we come to college in the first year, in the beginning, we feel uneasy unless we make friends. So Karna always has this need that from whom I belong, and he has this need that I should be accepted, I should be respected. That way. But he has a low birth. He was born of Shudra, and in those times, so it was not accepted. So in such a situation where he has a strong need of a belonging, what happened? It is told in the story. There was a match, and in the match of archery skills, so match चल रहा था, सब लोग अपना skills दिखा रहे थे. So Arjuna was an undisputed champion, and in that match Karna came. Like that. तो दोनों के बीच में ड्यूअल होने वाला था, लेकिन कृपाचार्य ने बोला अरे पहले इंट्रोडक्शन तो दो, ये तो क्षत्रियों का मैच चल रहा है, हाँ बराबरी वालों में मैच होता है. तो उसने बोला, तो वो कुछ बोला नहीं, तो नहीं बोलते ही समझ गए लोग, he does not belong to Kshatriya caste. अब ना दुर्योधना
दुर्योधना wanted a kingdom. दुर्योधन को शुरू से क्या चाहिए था? किंगडम. धृतराष्ट्र also attached to kingdom. तो दुर्योधन के पास के अगेंस्ट में सबसे बड़े दो वॉरियर थे, एक भीमा एक अर्जुन, जिससे उसको टेंशन थी. बट दुर्योधना was thinking in his mind always, भीमा I can handle. Why? Because बलराम जी ने दुर्योधन को गदा सिखाया था. तो स्किल में दुर्योधन भीमा से ज्यादा सुपीरियर थे, स्ट्रेंथ में भीमा वाज मोर सुपीरियर. तो दुर्योधन ने बोला भीमा को मैं फिर भी हैंडल कर लूंगा, बट अर्जुन आई कैन नॉट. सो ही वाज लुकिंग फॉर समवन हु इज अ मैच फॉर अर्जुन. ही इज ऑलवेज लुकिंग. तो जब ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, दुर्योधन से मैं इसको अंगराज देता हूँ. वो अंगराज उसका नहीं है अभी, बिकॉज किंगडम बिलोंग्स टू किंग. एंड हु इज किंग? किंग वाज पांडु. पता है ना आपको स्टोरी? किंग पांडु थे. पांडु के बाद धृतराष्ट्र कर रहे थे, लेकिन इसके बाद टेस्ट टू बी डिवाइडेड. इट डज नॉट बिलोंग टू हिम. जैसे आप किसी अपने अंकल के घर चले गए, हाँ वहाँ चले गए, वहाँ पे उनका एप्पल का मोबाइल रखा है, आपने उठाया और अपने दोस्त को बोला मैं तुझे गिफ्ट देता हूँ. तो वही है, वही दुर्योधन कर रहा है, सोना अंगराज देता हूँ. तो फिर भी पांडवास डिड नॉट रिटेलिएटेड. ठीक है. तो कर्णा फेल्ट सो ग्रेटफुल कि अभी तक मेरे को किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, इसने मुझे तुरंत भिखारी से रैग टू रिचेस तुरंत मुझे राजा बना दिया. तो कर्णा ने बोला व्हाट कैन आई डू फॉर यू. दुर्योधन ने क्या बोला? मुझे तुम्हारे दोस्त ही चाहिए. I don't want anything except your friendship. Karna became all the more indebted. Duryodhana was cunning, but Karna could not figure out. So Karna बोला अब तो this friendship you will have, Karna told to Duryodhana, till the last breath of my life, you will have it. So from here the story starts. तो अब इससे Duryodhana understood where to use him. Now Karna, अब यहाँ तक कर्ण को क्या पता है कि कर्ण की स्टोरी में कर्ण को पता है कि दुर्योधन पांडवों और कौरवों के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, इतना ही पता है उसको, और कुछ नहीं पता है. नाउ कर्णा बिकेम अ फ्रेंड ऑफ दुर्योधना लाइक दैट. नाउ slowly कर्णा वाज अ moral person, but he got to know Duryodhana is a very political person. He is a very vicious person. तो अब इस मैच जब मैच हुआ है, पहला ड्यूअल हुआ, उसके बाद दुर्योधना ने बोला कि प्लान करते हैं इन लोगों को मारने का. तो दुर्योधना मेड दैट स्कीम ऑफ वारणावृत. वारणावृत लैक हाउस, लाक्षागृह. तो लाक्षागृह में लोग जल के मर जाएंगे. तो दुर्योधन के पास एक एडवाइजर था, उसका नाम क्या था? शकुनी मामा. तो शकुनी एडवाइस देता था. तो कर्णा ने बोला अरे ये दिस इज रॉन्ग. वी आर क्षत्रियास, वी कैन चैलेंज देम इन फाइट एंड वी कैन डिफीट देम. युद्ध में चुनौती देंगे, युद्ध में हरा देंगे. तो शकुनी ने बोला कर्णा यू आर अ चाइल्ड. युद्ध लास्ट ऑप्शन है, युद्ध के बिना ही काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा. तो ऐसे क्या है, कर्णा सजेशन देते थे बीच में, लेकिन क्या है कर्ण के सजेशन को इन्होंने कभी सुना नहीं. और कर्ण का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीड था, नीड ऑफ बिलोंगिंग. मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, हमेशा उसको पूछते तुम किसी पुत्र हो, वो किससे बिलोंग करता है. अब दुर्योधन ने उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिया था. अब वो दुर्योधन के सर्कल में एक्सेप्ट हो गया था. तो सजेशन देता था, जैसे कुछ दोस्त रहते हैं साथ में, तो एक दोस्त बोल रहा है कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, दूसरा बोलते नहीं यार कार्ड्स खेलते हैं. बाकी लोग कार्ड्स बोलते हैं तो उसको भी कार्ड्स खेलना पड़ता है. तो ऐसे कई बार जब कर्ण की सजेशन रिजेक्ट हुई, तो कर्ण को समझ में उसने सजेशन देने बंद कर दिया, क्योंकि उसकी भी नीड थी. वो एक फ्रेंड सर्कल में, जिस भी फ्रेंड सर्कल में व्यक्ति रहता है उसकी एक नीड है. बहुत सारी चीजें हम कई बार कर देते हैं जस्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय द फ्रेंड सर्कल. इज इट नॉट? We come to college also, how we dress, how we behave, many of the things we do because we don't want to remain an outcast. कि भाई ये दूसरी दुनिया से आया है, लोगों को रहता है कि एक्सेप्टेड. तो कर्ण क्या है, यही फ्रेंड सर्कल में उसको एक्सेप्टेड होना है, लाइक दैट. तो कर्ण he stopped giving suggestion, like that. So first he was giving right suggestions.
Then he stopped giving suggestion. Then he started giving wrong suggestions. इसीलिए जब गैम्बलिंग का मैच हुआ तो गैम्बलिंग का मैच किसके बीच में था? युधिष्ठिर और नहीं दुर्योधन। युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में मैच था और ये दोनों लोग इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे गैम्बलिंग में, लेकिन दुर्योधन की साइड से किसने खेला? शकुनी ने। तो अनफेयर था। अब जैसे दो लोगों का बॉक्सिंग कंपटीशन में हो रहा है, हाँ, तो एक व्यक्ति खुद दो बच्चों के बीच में बॉक्सिंग होनी है स्कूल में, कॉलेज में, कंपटीशन में, तो एक बॉय आ जाता है, जो दूसरा बॉय है मोहम्मद अली को लेके आ जाता है, उसको खड़ा कर देता है, तो क्या होगा? दूसरे बॉय को शेकनी हो जाएगी इसकी, कैसे फाइट करेगा? इसी तरह दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज के बीच में शकुनी खेलने आ गए। युधिष्ठिर महाराज ने बोला भाई ये क्या चल रहा है, तो अनफेयर है। तो दुर्योधन ने बोला अगर तुम डरते हो तो छोड़ दो, इफ यू आर फियरफुल डोंट प्ले। युधिष्ठिर ने बोला आई एम नॉट फियरफुल बट दिस इज नॉट फेयर, एंड दे बोथ लुक टुवर्ड धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र किंग है, उसको डिसीजन लेना है। धृतराष्ट्र eyes were closed and mouth was also closed. Eyes are closed because he is blind and mouth is closed because he is attached. तो धृतराष्ट्र ने कुछ बोला नहीं, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला ठीक है भाई, राजा ने एग्री है तो छोड़ दिया। तो फिर वो गैम्बलिंग मैच हुआ है और उस गैम्बलिंग मैच में कर्णा सजेस्टेड टू डिसरोब द्रौपदी। Later, like in this story also it comes, he lamented why I said like this. He very much lamented why I said like this, like that. Yeah. Because Karna also got to know, but Karna has lot of tug of war. This is called a tug of war. उसके खुद के वैल्यू सिस्टम और साथ में जिस एसोसिएशन में वो रह रहा है उसके बीच में उसके चैलेंज। तो फिर ये स्टोरी आगे जाती है, युद्ध का समय आता है। तो जब युद्ध का समय आता है तो कुंती बताती है कर्ण को कि तुम पांडवों के भाई। उसके बाद भगवान स्वयं आके बताते हैं, तो भगवान कर्ण को बोलते हैं कि यू आर द एल्डेस्ट, आई विल एंश्योर यू विल बिकम द किंग, डोंट सपोर्ट दुर्योधन। तो कर्ण क्या बोलता है? I cannot do because I have said my word to the Duryodhan. वो ना वर्ड दे दिया हूँ मैं, नहीं उसको छोड़ सकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, was this decision of Karna right or wrong? According to the paragraph we have read it. No, according to you, not according to paragraph. What do you feel, it was right or wrong? So according to me, it was a right decision because Bhishma Pitama taken the word that he will not marry. Because this the kingdom belonged to Bhishma Pitama actually, but he decided not to marry. Then the descendant take place. Because of at that time the birds were the main thing. Okay. If you have given the birth, then you will die, but you will not change the line. Okay. What do you say? Sir, I think sir Karna was right because according to the Kshatris, this says Hindi प्राण जाए पर वचन न जाए. Yes. So I think sir I say right. Okay. Good. Yes. मेरे हिसाब से भी सही है सर, क्योंकि वचन दे दिया पहले दोस्ती का, हमको बाद में पता चलेगा मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, मजबूरी में मैंने वचन दे दिया है। Yes. What do you say? सर एज पर धर्मा मतलब वो धर्मा के अकॉर्डिंग नहीं था, मतलब वो उन्होंने साथ दिया था। दुर्योधन हमेशा मतलब कि अधर्मी था, तो अधर्मियों को साथ देने वाला भी अधर्मी ही होता है मेरे हिसाब से। लेकिन जो वर्ष दिए थे तो वो उसने इस हिसाब से उस दुर्योधन के साथ था कि मैंने इन्होंने मेरे को अंगराज का बना दिया। So, for what do you feel? Was he right or wrong? सर एज पर धर्मा वही। Okay, if you feel he was wrong, all of you are also in little tug of war. So if he was wrong, what is your suggestion? अगर suppose आप कर्ण के friend होते, सिचुएशन आप क्या सजेशन देते उसको? उस टाइम मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब सही है, क्योंकि वो शुरुआत से करना था, मतलब उसी माहौल में था कि हाँ ये
ठीक है, मतलब मेरी तरफ दोस्त मित्र हैं तो इनकी तरफ लड़ना चाहिए मुझे। Okay, good. That is why this session is there of tug of war. So now, very important thing to understand, in this world, whenever we make decision, the major decisions of life are not between right and wrong. It's not between good and bad. Many of them are between what is good and what is better. What is good and what is more good. It is like that. गुड और बैड के बीच में चूज करना आसान रहता है, लेकिन गुड और बेटर के बीच में चूज करना आसान नहीं है। ये सिद्धांत है। तो क्या है, करना वाज इन टग ऑफ वॉर, मटेरियल ग्रेटिट्यूड। दुर्योधन ने जब ही वाज इन एंजाइटी, नोबडी वाज सपोर्टिंग हिम, दुर्योधन सेव्ड हिज वर्ड्स, दुर्योधन सेव्ड हिज रेपुटेशन, दुर्योधन टाइमली नीड। कुंती तो बाद में बता रही है कि भाई तू मेरा पुत्र था, लेकिन दुर्योधन केम व्हेन ही वाज इन नीड। दुर्योधन gave the kingdom. Was it not? He was obliged. Correct? He was obliged, he gave words. Till here it is right. Right? But who gave? The kingdom does not belong to Duryodhana, first of all. And even if it belongs to Duryodhana, who gave Duryodhana the kingdom? From whom this kingdom belongs actually? It all belongs to Krishna. It all belongs to Krishna. Krishna only gave anyone who is having anything, it is given to him by Krishna. So we have to understand this concept, the dilemma of Duryodhana, Karna का confusion था, it was not easy to resolve. और ये confusion सबकी life में आता है. Like in India, anywhere you will find, धर्मा क्या है, बहुत अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल पे। तो धर्म भी क्या है, केवल एक स्तर पे नहीं रहता। अगर धर्म भी एक स्तर पे रहता तो निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, जो धर्म का तत्व है बहुत गुही है, इतना आसान नहीं है वहां पे लेना। जैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो गाय भाग रही है, पीछे से कसाई आ रहा है, कसाई पूछता है गाय कौन से डायरेक्शन में गई, उसको सही बोलना चाहिए गलत? गलत बोलना चाहिए। बस प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्य वचन का इतना हो है। इट इज अ चॉइस बिटवीन धर्म एंड हायर धर्म। हमारा धर्म क्या है, लेकिन उससे हायर धर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कर्ण ने अपने वचन दे दिए, लेकिन फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड मेकिंग मिस्टेक, इट इज अ नेचर ऑफ रॉन्ग एसोसिएशन, सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। उसने पहले तो वचन दे दिया, उसको पता नहीं इंट्रोडक्शन क्या है इसका पूरा दुर्योधन का। अब उसके बाद दुर्योधन वो देख रहा है कि पॉलिटिकल है, विशियस है, गलत काम कर रहा है। अब क्या हुआ, लेकिन उसकी एक नीड थी करना कि आई शुड बी एक्सेप्टेड, आई बिलोंग टू दिस। और नीड को फुलफिल करने के लिए क्या हुआ, एक के बाद एक कॉम्प्रोमाइज, एक के बाद एक कॉम्प्रोमाइज। फिर उसने सजेशन देना बंद कर दिया। हाँ, good suggestion, then no suggestion, then bad suggestion. Actually, he gave the worst suggestion. Disrobing of Draupadi in public was very big thing, and this suggestion came from Karna. This is power of bad. Just because one thing. जैसे there are countries, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, यहाँ पे कई सारे बच्चे रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं। तो जब वो बच्चे बहुत गरीब रहते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, वो खाना देती है, कपड़े देती है। ये बच्चे बहुत ग्रेटफुल हो जाते हैं, कोई था नहीं, ना माँ है ना बाप है, अब वो सब उसको खाने के लिए दे रही है, पहनने के लिए दे रही है, लाइक दैट। एंड दे से वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू, बट एज दे ग्रो अप दे रियलाइज दे आर टेररिस्ट। सो व्हाट दे शुड डू एट दैट टाइम? शुड दे से अरे हमने तो वचन दिया है, कुछ भी करेंगे तुम्हारे लिए? Should they say that, or they should change the thing? Change. What do you all say? They should change the thing, or they should remain grateful for what they have got initially? चीनी करते तो हैं हम लोग। Then I am asking what they should do. क्या करना चाहिए? करना चाहिए।
चेंज करना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि बचपन में वो दे दिया अब आगे वो टेररिस्ट बना रहे हैं तो टेररिस्ट बन जाए उसके कारण। चेंज करना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे दुर्योधन इज नो लेस देन अ टेररिस्ट। देखिए एक व्यक्ति है तो कुछ गलत काम करता है, चोरी करता है। हर सिटी में कुछ ऐसे एरिया रहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है उसका कुछ चोरी हो गया, उसका कुछ पैसे किसी ने लूट लिए, कुछ पर्स चोरी कर लिया, पुलिस में आके कंप्लेन करता है सर हमारा ये चोरी हो गया। कहाँ चोरी हुआ था? वो एरिया का नाम बताता है। पुलिस बोलती है तुम गए कहाँ, क्यों थे वहाँ पे? हम भी नहीं जाते हैं वहाँ पे। कुछ ऐसे एरिया रहते हैं पुलिस भी नहीं जाती है। हाँ, तो वो इतने बड़े क्रिमिनल रहते हैं, जो छोटे क्रिमिनल रहते हैं और एक बड़े क्रिमिनल रहते हैं जिनसे पुलिस भी डरती है। और सबसे बड़ा क्राइम है अगर कोई पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के ही क्राइम कर दे, तो वो सबसे बड़ा क्राइम है। तो ये डिसरोबिंग द्रौपदी की कहाँ हो रही है? हस्तिनापुर में। ये जो पूरी पृथ्वी के जो राजा है मेन, और राजा का काम है लॉ, धर्म का पालन होना चाहिए, धर्म के सिद्धांतों का। वहाँ सबसे बड़ा अधर्म हो रहा है, उसका मेन पर्सन है दुर्योधन। तो इन नो लेस देन अ टेररिस्ट, ऐसा है। तो ये पहला मिस्टेक है कर्ण का। हाँ, कर्ण वाज थॉटफुल बट ही मेड अ रॉन्ग डिसीजन, ही मेड अ रॉन्ग डिसीजन। ये सर जी भगवान श्री कृष्ण ने होने कैसे दिया? वो तो कुछ ही सवाल थे ना पहले से। तो भगवान ने नहीं होने दिया ना कंप्लीट। इसीलिए तो क्या है यहाँ पे सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे लिए समझना। आज के वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैलेंज एसोसिएशन है। आप स्क्रिप्चर्स को अगर पढ़ेंगे, शास्त्रों में अगर किसी एक चीज का सबसे ज्यादा गुणगान है तो वो एसोसिएशन है। ये किसी एक चीज का सदाम प्रसन्नाद मम वीर संविदो। हाँ, जो अच्छे लोगों का संग है संसार में सबसे दुर्लभ चीज है, क्योंकि एसोसिएशन एक ऐसी चीज है उस पैकेज में बाकी सब अपने आप आ जाता है। राइट हैबिट्स, राइट गोल्स, राइट थॉट्स अपने आप आ जाता है। वो पैकेज के साथ, जैसे पहले कोलगेट का बड़ा पैक आता था ना, उसके साथ टूथब्रश फ्री, छोटा कोलगेट फ्री, ऐसे ही एसोसिएशन ऐसा पैकेज है, बाकी जो लाइफ की क्वालिटी है उसके साथ आती है। और इसी तरह कर्णा की लाइफ में यही हुआ, उसको बैड एसोसिएशन मिल गया। कर्णा मॉरल पर्सन था, कोई मटेरियलिस्टिक पर्सन नहीं था। वो बोल रहा है कि भगवान बोलते हैं मैं तुमको इससे बड़ा किंगडम दे दूंगा, तो कर्ण बोलते हैं मैं अपने वर्ड्स वापस नहीं ले सकता। मतलब मॉरल था, ठीक है, मॉरल था वो, ऐसा मटेरियलिस्टिक पर्सन नहीं था। लेकिन मॉरल भी सफिशिएंट नहीं है। ही वाज नॉट फुली स्पिरिचुअल, ही वाज सीइंग फार, ही वाज मॉरल। दुनिया की नजरों में, जैसे आप सबने बोला, सही किया उसने, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। पर राइट से देयर इज अ राइट बियॉन्ड राइट व्हिच ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। ये सब जो विभीषण थे वो राम जी के पास आए थे रावण को छोड़ के, और सर कर्ण था वो छोड़ के गया नहीं। लेकिन सर जब बच्चों का नाम रखा जाता है तो कर्ण ज़्यादा नाम मिलते, विभीषण तो कोई रखता भी नहीं है। तो उसमें फिर इतनी ज़्यादा साधु संत हैं हमारे देश में, उन्होंने मतलब क्यों फोर्स नहीं किया कि तुम विभीषण नाम रखो, कर्ण क्यों रखते हो? नहीं, तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, ये साधु संतों का मत थोड़ी है। लोगों को यही तो अंडरस्टैंडिंग है ना, धर्म का पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं है। धर्म के तत्व में बहुत सारे डिटेल्स हैं जिनका लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो कर्णा का लाइफ है ये बहुत कॉमन कैरेक्टर है, आज के डेट में हमको देखने मिलता है। कर्णा क्या है, अच्छा व्यक्ति गलत संग के कारण उसका पूरा लाइफ नेगेटिव हो गया, वो कर्ण है। ये गलत संग के कारण, जैसे I just yes you can ask. Sir, you say that Duryodhana was a terrorist. Sir, the Pandav's wife says उनको बोली थी कि अंधे का पुत्र अंधा, तो ये तो उकसाना हो गया ना। तो उकसाने वाला भी तो उसको क्या बोला जाएगा? वो बाद में हुआ है, वो पास्ट टाइम महाभारत। देखिए वर्ड्स अलग है, एक्शंस अलग है। वर्ड्स अलग है, एक्शंस अलग है। महाभारत में वर्ड्स तो बहुत कुछ है, बोला बहुत कुछ है लोगों ने एक दूसरे को। दुर्योधन ने बहुत कुछ बोला है,
जो द्रौपदी का चीरहरण उसमें भी लोगों ने बोला है। लेकिन दुर्योधन, आप सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, आप कॉन्स्टेंटली पढ़ेंगे महाभारत, दुर्योधन का पार्टी पूरा विलन का ही पार्टी है, वो ब्लैक एंड व्हाइट की तरह है। तो कर्ण का बेसिकली पॉइंट क्या है कि ये संसार में अगर हमारा संग गलत हो गया तो लाइफ की पूरी डेफिनेशन गलत हो जाती है। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी टैलेंटेड व्यक्ति हो, कर्ण वाज स्किलफुल एंड ही हैड वैल्यूज, वो स्किलफुल भी था, दानी भी थी, वैल्यूज भी था, लेकिन फिर भी अगर संग आपका गलत हो गया, हाँ अगर संग गलत हो गया, इसलिए जैसे इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया बहुत एक्सेप्शनल एग्जाम्पल था भीष्म का। कौरवों के साथ रह के भी वो भगवान के डिवोटी थे, वो गंगा के पुत्र थे। भीष्म का एक बहुत पुराना बहुत डिटेल स्टोरी है, अष्टवस्त्रों में से एक थे, बहुत पुराना स्टोरी, बहुत रेयर है, एक श्राप के कारण यहाँ आए थे, वरना आपका जो संग है वैसे ही आप हो जाते। तो ये करना का पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक क्या होता है, जब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए। ये केवल टग ऑफ वॉर कर्ण का नहीं है, ये हम सबका है। क्यों? क्योंकि हमारे मटेरियल फ्रेंड्स हैं, वो हमको एक साइड पुल करते हैं, और स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं दूसरी साइड पुल करते हैं। अब मटेरियल फ्रेंड्स भी हमको मटेरियल फेवर देते हैं, जैसे दुर्योधन ने कर्ण को मटेरियल फेवर दिया, तो इट बिकम्स अ टग ऑफ वॉर। स्पिरिचुअल लाइफ जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांच में होंगे, कुछ होंगे, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बोलते हैं, इज इट नॉट? ये अब जो मटेरियल फ्रेंड्स होते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार होते हैं, वो अच्छे से बात करते हैं, दे आर हेल्पफुल, दे आर फ्रेंडली, एंड इन टाइम्स ऑफ नीड दे आर विलिंग टू एक्सटेंड। बट ये डिस्क्रिमिनेशन कि मटेरियल और स्पिरिचुअल में क्या अंतर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति प्रिंसिपल्स पे काम नहीं कर रहा है, उसका नेचर कितना भी अच्छा हो, उसका बिहेवियर कितना भी अच्छा हो, कितने भी अच्छे से बोलता है, कितना भी हेल्पफुल है, वो हमारी लाइफ को अच्छा नहीं बना सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल लाइफ भी करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे लोग जानते ही और भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज़ देयर इज सम दुर्योधना पुलिंग देम। नॉट एग्जैक्टली दुर्योधन, पर कोई तो है जो उसको पुल कर रहा है, आप देखेंगे, और उसका एक नीड है, आई शुड बी एक्सेप्टेड बाय दिस सर्कल, करेक्ट? और वो उस नीड को फुलफिल करने के लिए उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है जनरली, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और स्पिरिचुअल लाइफ एक्सेप्ट नहीं करेगा, अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहेगा, अच्छी चीजें नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ये प्रिंसिपल होता है। जैसे कॉलेज में वी हैव सीन इन आवर कॉलेज आल्सो, एक पर्सन था संदीप से उसका नाम, यू कॉल हिम सैंडी, कॉलेज में वो कर देते ना नामकरण। तो हमारे फ्लैंक पार्टी था, उसमें ड्रिंक, फ्लैंक पार्टी में आर्मी में तो वैसे होते बहुत नॉर्मल है, तो ड्रिंक करने में तो जो ड्रिंक करता है वो ड्रिंक को एडजस्ट कर लेता है, जिसकी रेगुलर ड्रिंकर होता है, लेकिन जो रेगुलर ड्रिंकर नहीं है उसको ज़्यादा चढ़ती है। तो थोड़ा जिसको चढ़ती है तो उसको पता रहता है कि मैं शराब पी हूँ, लेकिन ज़्यादा पी लेता है कोई तो ज़्यादा हो जाता है, तो उसने कभी ड्रिंक नहीं किया। लेकिन पार्टी जो रहती है उसमें सीनियर पुश करते हैं, उसने ड्रिंक कर लिया, ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। अब उसके बाद लोग जाने लगे, वो सब जाने लगे, तो ड्रिंक कर लिया तो कोई नहीं, ड्रिंक करके भी गाड़ी चला, ड्रिंक बहुत ज़्यादा हो तो पहली बार ड्रिंक किया ये, तो कुछ इधर उधर उसने डैमेज कर दिया, और पुलिस ने भी उसको कैच कर लिया ये, और बाकी सब लोग तो पहुंच गए, पार्टी वार्टी खत्म होने के बाद नहीं पहुंच पाया। हमारे कॉलेज में और चीज़ें बहुत, अगले दिन उसका पुलिस केस हुआ, 1 साल के लिए एक्सपेल हो गया। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे जिस कॉलेज से हम लोग स्टडी किए, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स। इतना अच्छा था पढ़ने में, अच्छा था उसका नेचर, सब कुछ अच्छा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसका नेचर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। वन नाइट, वन मिस्टेक, जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय, यार सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, मैं कैसे नहीं ड्रिंक कर सकता हूँ, रॉन्ग एसोसिएशन।
I told you example of one of my batchmates, his name was Nitesh. I told you, no? Yes, sir. He was a principal scented man, but because he was in wrong association, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, रॉन्ग एसोसिएशन क्या होता है? दीमक की तरह होता है, पता नहीं चलता है। जैसे दीमक किसी पेड़ को लगता है ना, वैसा ही दिखता है वो, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है, जैसे आप सबने बोला ना कि कर्ण को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या है, मटेरियल चीज़ों के लिए बहुत ग्रेटफुल रहते हैं। तो उस चाचा जी ने एजुकेशन स्पॉन्सर कर दी, किसी ने हमारी बहन की शादी करा दी, तो कितना ग्रेटफुल रहेंगे, करेक्ट? लेकिन हम जो अल्टीमेट कॉज है उसको नहीं देखते। धर्म के ऊपर भी एक धर्म है, मटेरियल ड्यूटी के ऊपर भी एक ड्यूटी है, जो स्पिरिचुअल ड्यूटी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसको करना नहीं है, जिसने हेल्प किया उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं रहना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा, एटलीस्ट इक्वल और ग्रेटर ग्रेटिट्यूड वी शुड हैव टुवर्ड्स गॉड। ऐसे ही तो पूरे रशिया में कम्युनिज्म आ गया ना, तो लोग चर्च जाते थे, चर्च के बाहर लोग स्टॉल लगा लेते थे, चर्च के बाहर आते थे, बोले क्या किया तुमने? बोले हमने जीसस को प्रे किया। क्या प्रे किया? ओ जीसस गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो क्या मिला क्या तुमको? नहीं मिला। तो हमसे प्रे करो। तो उन्होंने उनसे प्रे किया, गिव अस आवर डेली, वो कम्युनिस्ट गिव अस आवर डेली, वो स्टॉल ही लगाए हुए थे, so they gave the bread. Thousands and lakhs of people are converted like this. Now, these people are so foolish, वो ये नहीं समझ में आ रहा है उसको ये ब्रेड कहाँ से आया, ये कम्युनिस्ट के पास कहाँ से ब्रेड आया? हाँ, अल्टीमेट कहाँ से आया? हाँ, अल्टीमेट भगवान से ही आ रहा है ना वो। Anything anybody is giving us, from where it is coming? कर्म को स्किल्स किससे मिला, दिमाग किससे मिला, प्राण उसके लाइफ में कहाँ से? भगवान से ही आ रहा है ना। So that is what we are not able to connect, and that's why the things fail. तो कर्ण को ये समझ में नहीं आया, तो इस टग ऑफ वॉर में we have to survive in life. हमारे लाइफ में भी ये टग ऑफ वॉर हमेशा आएगा। Always we have to choose between material friends and spiritual friends. हमको सोसाइटी से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, लेकिन we have to be intelligent. Friendship is different than being in society. Association is different than being together. Association spiritual लोगों का लेना चाहिए। Wrong association लेने से सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं और ऐसे ही डेडली एंड होता है, जैसे कर्ण का एंड हुआ। अगर वो मटेरियली भी उसको किंगडम मिल जाता है, अगर कृष्ण की बात मान लेता, और स्पिरिचुअली कृष्णा वुड हैव गिवन इन द स्पिरिचुअल किंगडम like that. You know, Krishna would have given in the spiritual kingdom. और वॉर होता ही नहीं था, हो सकता है वॉर होता ही नहीं था, बट दिस टग ऑफ वॉर हमारे लाइफ में भी we will have many material friends and many material connections. There is no problem, we can be grateful, but we should never compromise, and we should have more gratitude for God. इसी के अपोजिट पूरे आप महाभारत में देखेंगे, जो भगवान के भक्त हैं या जो ग्रेट सोल्स हैं, उसकी लाइफ में ये क्लैरिटी है। क्या क्लैरिटी है? जैसे कुंती महारानी के लाइफ में जो भी फेवर हुआ है, इतना सारा हुआ है, उनकी प्रार्थनाएं आती हैं पहले स्कंद के 8वें अध्याय में, तो भगवान को थैंक यू बोल रही है। बहुत सारी चीजों में तो भगवान है भी नहीं, जैसे भीम को विश दिया गया केक में, भगवान थे ही नहीं वहीं पिक्चर में, लेकिन वो भगवान को थैंक यू बोल रही है। ऐसे ही अर्जुन जब भगवान चले जाते हैं, अर्जुन को द्रौपदी का हाथ मिला, बहुत कुछ हुआ, भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में कहीं कृष्ण थे? बहुत सारी चीजों में नहीं थे, पाशुपतास्त्र में नहीं थे, उस सब में भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। क्यों? ये क्लैरिटी है। अल्टीमेट रीजन, हाँ, कि अल्टीमेटली ना, जैसे इतने सारे बल्ब जल रहे हैं, पर अल्टीमेटली जो पावर ग्रिड है ना, वहां से सप्लाई आ रहा है। वहां से आप काट दोगे ग्रिड से, किसी को नहीं आएगा। ऐसा है। तो ये क्लैरिटी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, तब हम स्पिरिचुअल लाइफ कर सकते हैं, क्योंकि हमको बहुत समय पे चुनना पड़ेगा। मटेरियल फ्रेंड्स कुछ बोलेंगे और मटेरियल रिलेटिव्स कुछ बोलेंगे, कंपनी में जाएंगे तो दूसरे एम्प्लॉयज कुछ बोलेंगे, बॉस कुछ बोलेगा,
तो सारी चीजों को करते हुए स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करना है, क्या है? टग ऑफ, बहुत बड़ा टग ऑफ वार। इसीलिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज पे हमको क्लैरिटी मिलता है, वरना व्यक्ति कंफ्यूज होता है व्हाट टू मेक। डिसीजन मेकिंग आसान चीज नहीं है संसार में, क्या डिसीजन मुझे लेना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट इज बिटवीन टू राइट। राइट और रॉन्ग में तो एटलीस्ट आदमी को समझ में आता है, लेकिन टू राइट्स के बीच में मुश्किल है ये। बहुत सारे लोग आई हैव सीन इन माय लास्ट 15 years of preaching to college students. This one common thing, tug of war, they lose. tug of war में छोड़ देते हैं वो spiritual life। क्यों? क्योंकि उनको लगता है it's too much, material friends हैं, support करेंगे, ये होगा वो होगा, पर उनका लाइफ एकदम materially spiritually दोनों तरह से लॉस हो जाता है। So this is a story of karma। सर आपके हिसाब से कर्ण है प्रेजेंट टाइम पे देखिए उसको अच्छे से देखा जाए, खराब तरीके से मतलब कर्ण को प्रेजेंट टाइम पे। देखिए कोई भी व्यक्ति है ना, पूरा अच्छा पूरा बुरा नहीं है। जनरली हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, ब्लैक और व्हाइट, पर ज्यादातर दे आर इन शेड्स ऑफ ग्रे। जैसे जरासंध है, वो देवी के भक्त थे, बहुत बड़े दानी थे। कर्ण है, वो भी बहुत बड़े दानी थे। तो अगर उसका दान का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे देन ही इज गुड, एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये। बट व्हेन यू गो फ्रॉम हायर पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज नॉट अ वेरी वेरी ग्रेट सोल, ये बिकॉज ही मेड मिस्टेक्स आल्सो ये। तो अच्छा बुरा नहीं है, बेसिकली लेवल है, कौन से एंगल से आप देख रहे हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ धर्म से देखेंगे तो कहीं उसका गिनती नहीं है ऐसा। सर वो स्पेशल नहीं है, हाँ? जैसे बाकी पांडव थे जिसमें वो आ रहा हाँ, तो करना का नहीं है डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं। सर पांडवों ने एक जंगल जलाया था सर, अरण्य जंगल जलाया था, कौन सा जलाया था सर? उसमें सब बहुत सारे जानवर मार दिए गए थे, वो हो गया था क्योंकि उन्हें वो राज्य मिल गया था ना, खांडवप्रस्थ। हाँ खांडवप्रस्थ, वो जगह जला दिया था उन्होंने। सर वो तो और इविल हुए सर, वो तो इविल ज़्यादा हुए सर। ये सब क्या है ना, मतलब एक एंगल से है। हाँ जैसे जो खांडवप्रस्थ वाला जो जंगल उन्होंने जलाया था, तो अग्निदेव है, अग्निदेव को अजीर्ण हो गया था, तो उनके लिए फाइबर अग्निदेव के लिए उन्होंने। सो एक्चुअली दिस वर्ल्ड इज लाइक दैट, इफ यू लुक फॉर, जनरली व्हेन यू लुक फॉर कंप्लीट परफेक्शन, जैसा हमारे माइंड में अंडरस्टैंडिंग रहता है ना कि अच्छा व्यक्ति है मतलब जीरो वायलेंस होना चाहिए, कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप देखेंगे पहले के क्षत्रियों ने बहुत पशुओं को मारा है, और पहले क्षत्रियों में ये अलाउड था, क्योंकि आर्मी वाला है, वो शूटिंग नहीं करेगा, एकदम से आप वॉर पे उतार दो तो कैसे करेगा? तो उसको प्रैक्टिस है तभी कर सकता है ना, नहीं तो शेर को देखेगा क्या होगा उसको। तो क्षत्रिय लोग प्रैक्टिस करते थे, शो को मारते तो उनके लिए अलाउ था। तो तब वो बड़े लेवल पे, जैसे चाणक्य का सिद्धांत है ना कि एक देश के लिए बताया गया ना, मतलब अगर परिवार है, परिवार के लिए एक व्यक्ति की कुर्बानी दी जा सकती है ना, समाज है, समाज के लिए परिवार की दी जा सकती है, देश है, देश के लिए समाज की दी जा सकती है कुर्बानी, है ना। इसी तरह संसार है, संसार के लिए एक देश की दी जा सकती है। और लास्ट लाइन पता है कि नहीं इसका? लास्ट पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जीवन का मेन उद्देश्य है, भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी भी कुर्बानी दी जा सकती है, लास्ट है उसका। जैसे परिवार के लिए एक व्यक्ति को कुर्बान किया जा सकता है, समाज के लिए एक परिवार, देश के लिए एक समाज को, ये ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ भी थोड़ा जा सकता है। कुर्बान से मतलब मारना है, कुछ बेच में नहीं नहीं, त्याग करना ऐसा। इस्लाम में कुर्बानी वो अलग समझ गए तो मार कर जाता नहीं, इस्लाम वाला भी है, क्योंकि इस्लाम में अंडरस्टैंडिंग है, वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जो जिहाद का अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कोई धर्म करने नहीं दे रहा है। अगर आपको कोई धर्म करने से रोक रहा है तो आप उसके अगेंस्ट युद्ध कर सकते हैं, धर्म करने के अगेंस्ट। तो उस सब में बहुत डिटेल है, कंसेशंस दिए गए हैं बहुत। तो ये जो सेशन है
टग ऑफ वॉर ये इम्पोर्टेंट सेशन है अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप सोच सकते हैं कर्ण के लिए भी कितना मुश्किल था, ऐसे ही हम लोगों के लिए भी वी हैव टू चूज एंड चूज राइटली। एनीबडी